Yes. Hopefully my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Is my screen visible? Yes, sir. So, all right. So here is the GATE website. If you haven't registered on GATE, you first this official GATE 2021 is website. Its website is gate.iitb.ac.in. And just because this IIT Bombay is conducting that lecture, this GATE exam, therefore this complete authority has been given to IIT Bombay this time. And you may be knowing about the GATE that it is being conducted by these 7 IITs and IISc, of course. So these institutes are involved in conducting this GATE exam, and it's very important exam. देखो गेट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जस्ट 1 मिनट लूंगा आपका। गेट जो है वो डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के लिए नहीं है। आई मीन जस्ट टू परफॉर्म एमटेक, ओके, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एमटेक और इन ऑर्डर टू गेट एन एडमिशन टू एमटेक, only for that the gate is not there. Gate is also there to take an admission directly to PhD program. Okay, many of you may not be knowing that, but if you get a very good gate score, you can just take the admission in PhD directly. Okay, and not only that, some PSUs, okay, public sector unions, महारत्न कंपनीज जैसे रहती है, नवरत्न कंपनीज रहती है, उनके पैकेजेस भी बहुत हाई रहते हैं। उनमें अगर आपको जॉब चाहिए तो गेट जो है ना, गेट के बेसिस पे ही जो है वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उनके राउंड्स जो इंटरव्यूज के उसी के बेसिस पे होते हैं। So for more details, you can just log on to this website. There are important dates, and let me tell you that the last date is the 14th of September. So just remember that date. If you haven't filled a form, please go and fill that form. All right, so it's very short session that I'm having it here, because just 4 hours for signals and systems may not be sufficient. But what I will do is I'll just try to cover as much as possible as I can do. So let me start with this GATE syllabus for signals and systems. And let me tell you guys, this signals and systems hold around 10%, around 9 to 10% of the whole weightage for the GATE. So what I'm saying is the signals and systems is so important as far as GATE point of view, that it forms a kind of foundation, not only for signals and systems, but also for the courses like DSP. It also forms the foundation for network analysis, for communications. अगर आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स तगड़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाता है, तो आपको कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेस या फिर नेटवर्क एनालिसिस जैसे कोर्सेस या फिर कंट्रोल सिस्टम्स, इसमें आपका डेप्थ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना फिजूल वक्त जाया करे मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि लेक्चर्स जो है ना अपने को बहुत कम दिए गए हैं। 4 lectures may not be sufficient, but whatever it's there time, we'll just make best use of it, and let's go for it then. So first of all, today what I'm going to cover is all about the basics of signals and systems. पता नहीं मुझे कि किस तरीके से आपको शायद पढ़ाया गया हो। I'm assuming that you may not know anything. I'm just assuming that you don't have any kind of background. So it depends, like how you are coming from which background you are coming. Maybe you are like a 3rd year 4th year student. You might have studied signals and systems, but you may not remember those things. And also I'm just taking care of everything. I'm not assuming anything, assuming that you don't know anything. I'm going to start. Okay, so the first topic that we are going to cover, let me share the screen again. Yes. So first topic that I'm going to cover is all about this, what are called as signals. Okay, and in that specifically I'm going to cover about sinusoids. First of all, let me tell you about signals. अब सिग्नल के बारे में अगर जानना है अपने को, सिग्नल्स क्या है, व्हाट इज अ सिग्नल? बेसिकली बोलते हैं कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेरी आवाज जो है वो सिग्नल है, एंड सो ऑन। सो सिग्नल बेसिकली जब भी आपको कोई पूछता है कि सिग्नल क्या है, तो सिग्नल इज, बोल दो उनको कि इट इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो यहाँ पे ये ऑसिलोस्कोप देखा जैसे आपके लैब में रहता था, है ना, लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो ये ऑसिलोस्कोप टाइप आपको दिखता था। तो दिस ऑसिलोस्कोप नथिंग बट इट सिंपली प्लॉट्स व्हाटएवर द सिग्नल इज बीइंग फेड टू इट। अब जैसे मेरी आवाज आप सुन रहे हो ना, तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिग्नल। ओके, सिंपली इट इज अ सिग्नल। ये सिग्नल है क्या? ये सिग्नल जो है, मेरी आवाज जो है वो वक्त के साथ साथ बदल रही है, राइट? इट इज चेंजिंग, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
वक्त के साथ साथ मेरी आवाज जो है वो कम ज्यादा हो रही है, मतलब वक्त के साथ वो बदल रही है. सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट्स व्हाट आई कैन से. सो I can write this thing as, okay, my voice can be represented as something like this. मतलब ये V of t, मतलब ये voice signal है जो मेरी आवाज जो है, let's say it is a voice signal and this t is the independent variable. Independent variable इसको बोलेंगे independent variable. वो वेरिएबल है जिसके साथ मेरी आवाज जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिग्नल. सिग्नल जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वक्त के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर टाइम. टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है. ओके, इट इज नेवर स्टॉपिंग. ओके, इट्स जस्ट गोइंग ऑन. ओके, वी कांट स्टॉप टाइम. सो इट इज अ काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच आवर वॉइस इज डिपेंडेंट. ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन काफी है सिग्नल्स के बारे में जानने के लिए. ओके, ये अगर सिग्नल्स के बारे में आपको पता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिग्नल्स जो है वो है साइनोसॉइड्स. अब हम आते हैं साइन वेव पे. ओके, साइन वेव पे या फिर साइनोसॉइड्स के ऊपर आते हैं. इन जनरल साइनोसॉइड, जब भी मैं कहूंगा साइनोसॉइड्स, उसका मतलब साइन या फिर कॉस, उसका मतलब रहेगा साइन सिग्नल या फिर कॉस सिग्नल. अब उसके पहले मैं बता देता हूं कि हम ये साइन क्यों पढ़ रहे हैं. एक्चुअली होता क्या है कि साइन और कॉस इतने इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिग्नल्स में आते हैं क्योंकि आप जो है कोई भी सिग्नल की एनालिसिस साइन वेव या फिर कोसाइन वेव से कर सकते हैं. यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस यूजिंग दिस व्हाट आर कॉल्ड एज वेरी बेसिक एंड स्मूथेस्ट फंक्शंस दैट आर अवेलेबल ऑन प्लैनेट. सो दीज आर द साइनोसॉइड. साइन वेव या फिर कोसाइन वेव, मतलब मेरी आवाज भी आप देखोगे ना तो वो भी मैं साइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी आवाज को अगर देखोगे तो इसमें थोड़े थोड़े साइन की कंपोनेंट्स आप देखोगे. आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करके बता सकता हूँ. जैसे देखो, मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो आपको ये साइन वेव नहीं दिखेगी, पर अगर मैं स्पेसिफिक टोन में अगर बात करता हूँ तो आपको ये साइन वेव जरूर दिखेगी. जैसे मैं अभी सीटी बजाता हूँ, देखो अब हो क्या रहा है कि मैं जब सीटी बजा रहा हूं तो एक टोन आ रही है. इट्स अ सिंगल टोन सिग्नल, उसी को हम साइनोसॉइड बोलते हैं. देखो, तो ये तब आएगा जब आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी, अब मेरी आवाज में काफी सारी फ्रीक्वेंसीज है, बट वो अगर मैं सिर्फ एक टोन में अगर बात करूं तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी है जो अपने को दिखेगी. तो इसी साइन वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो यहाँ पे, सो माय सिग्नल, लेट्स से एनी सिग्नल इट इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल एस ऑफ टी. ओके, कोई भी सिग्नल ले लिया, वो किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज साइन वेव ना, साइन 2 pi. So sine wave will have some amplitude, sine 2 pi f t. This is a very standard form of sine wave. अब कोई भी sine wave जो है ये standard form में represent कर सकते हैं. And of course there is something called as theta, which is nothing but the phase. अब इन components के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा. देखो यहाँ पे, ये जो है दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ साइन वेव. ओके, अब इसमें क्या क्या है? ए बोले तो क्या, दिस इज द पीक एम्पलीट्यूड, मतलब ये सबसे ज्यादा, मतलब ये अगर मेरे पास साइनोसॉइड है, ओके, इफ दिस इज अ साइनोसॉइड, ए क्या हुआ? ये पीक एम्पलीट्यूड, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये हुआ ए. ओके, व्हाट इज दिस एफ? एफ इज द फ्रीक्वेंसी. एफ इज द फ्रीक्वेंसी. ये हुआ ए, हुआ एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, और ये हुई फ्रीक्वेंसी. दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हम सबको पता है, वो है हर्ट्ज. ओके, अभी हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को देख रहे हैं, हम डिस्क्रीट टाइम भी देख सकते हैं. एंड व्हाट इज दिस? दिस कॉल्ड एज फेज. ओके, फेज इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ डिले. ओके, एज यू कैन सी, ये फेज कंपोनेंट है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट इसको बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ फेज कंपोनेंट. फेज, दिस इज मेजर्ड इन रेडियंस और डिग्रीज. ओके, इट्स मेजर्ड इन रेडियंस. नाउ ये तीन पैरामीटर्स के अगर मुझे पता हो, if we know any, if I know all these three parameters, which are those parameters? The first parameter is the amplitude, the second is the frequency, and another is the theta. That is nothing but the phase. If I know these three parameters, I can design, if I can generate any kind of sine wave. Okay, ये मैं बेसिक्स बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स बाद में जो गेट के बेसिस पे प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए. तो ये हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ साइन वेव. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साइन वेव में क्या रहता है? तीन पैरामीटर्स रहते हैं. एक हो गया एम्पलीट्यूड, दूसरा हुआ फ्रीक्वेंसी, और तीसरा हुआ फेज. अब इनके यूनिट भी हमको पता है. एम्पलीट्यूड जो है वो
it depends like what is the unit. It can be a volts, it can be anything, it can be current, it can be amperes, it can be anything. Okay, so फ्रीक्वेंसी जो है उसका हर्ट्ज रहता है. फ्रीक्वेंसी इसमें क्या कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स आ रही है इसकी. फॉर एग्जांपल ये हुई इसकी फ्रीक्वेंसी. मान लो कि ये एक सेकंड का है, एक सेकंड, मान लो कि ये एक सेकंड का है. इफ दिस इज अ 1 सेकंड ड्यूरेशन सिग्नल, एक सेकंड में कितनी साइकिल आ रही है. देखो यू कैन सी दैट एक सेकंड में सिर्फ एक ही साइकिल आ रही है. साइकिल मतलब स्टार्ट करो, अप जाओ, डाउन जाओ और फिर उसी पॉइंट पे आ जाओ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट साइकिल. एक सेकंड में कितनी साइकिल आ रही है, दैट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी. ओके, साइकिल्स पर सेकंड, दिस इज नथिंग बट अ साइकिल्स. सो आई कैन राइट इट एज साइकिल्स पर सेकंड. एक सेकंड में कितनी साइकिल आ रही है. ओके, दैट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी. और ये फेज क्या है, ये थीटा जो है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. इट डिपेंड्स व्हाट इज गोइंग टू बी द फेज. सो मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, ये सिग्नल, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. सो द फेज हियर इज जीरो, द थीटा पार्ट हियर इज जीरो. Had this been the case कि यहां से अगर ये स्टार्ट होता था यहां से, तो it would have been pi by 2. Okay, this signal would have been pi by 2. This phase would have been plus pi by 2 in that case. Pi by 2. क्यों? क्योंकि ये 0 है, ये pi by 2 है, ये pi है, ये 3 pi by 2 है और ये 2 pi. ये पूरा का पूरा जो सिग्नल है ये 2 pi से मैंने रिप्रेजेंट किया. वन साइकिल इन 2 pi ड्यूरेशंस. ओके, तो यहां तक कि शायद सबको समझ में आएगा कि ये जो है ये सिग्नल जो है नॉर्मली साइनोसॉइड जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये साइन भी हो सकता है, ये कोसाइन भी हो सकता है. यू कैन टेक इट साइन और यू कैन टेक इट एज कोसाइन. ओके, एनीथिंग इज फाइन. इट कैन बी कॉस सिग्नल आल्सो. सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइनोसॉइड्स. ओके, अब ये तो हुआ कंटिन्यूअस टाइम केस. ओके, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि इसका जो है व्हाट डू यू मीन बाय दीज 3 कंपोनेंट्स. ये तो हमने देख लिया. Now what we are going to look at is in detail. अब इसके तो बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गेट लो या फिर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स लो या फिर पूरी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 pi f है जो है ना, इसको एक रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं यूजुअली, दैट इज कॉल्ड एज एन ओमेगा. उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi f. 2 pi f. सो मैंने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया ओमेगा को 2 pi f से. दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अभी ये क्या हुआ, ये जो था फ्रीक्वेंसी जो थी वो हर्ट्ज में थी, उसको मैंने 2 pi से मल्टीप्लाई किया एंड 2 pi इज नथिंग बट रेडियंस. सो दिस कंप्लीट इज इन रेडियंस. ओके, इसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई आ गया ना, इसलिए. नाउ वंस वी नो दिस सिग्नल्स वी शुड लुक एट द पीरियोडिसिटी. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि दीज सिग्नल्स आर पीरियोडिक इन नेचर. ये सिग्नल जो है पीरियोडिक होते हैं. पीरियोडिक मतलब एक वक्त के बाद ये रिपीट होते हैं. आपको पता है कि ये सिग्नल जो है, ये साइनोसॉइड जो है, ये एक वक्त के बाद रिपीट होगा और जिस वक्त के साथ वो रिपीट होगा दैट टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज अ पीरियड. ओके, पीरियड ऑफ अ साइनोसॉइड. तो यही मुझे जो मैं बोल रहा हूं कि ये सिग्नल जो है ये पीरियोडिक है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा देखना. तो मैं मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं. देखना पे एक सिग्नल है ना, मतलब ये सिग्नल है एस टी. दिस इज रिपीटिंग, मतलब दिस इज इक्वल टू द सिग्नल दैट वुड हैव बीन देयर आफ्टर सर्टेन टाइम. This is called as the definition for periodicity. ये यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सिग्नल जो है it is same as that of s of t plus t. अब ये प्लस t क्या है, it is the period after which it is repeating. अब मान लो कि यहाँ पे देखो ये ऊपर के सिग्नल में this signal is repeating after 1 second, right? This signal is repeating after 1 second, 2 second, 3 second and so on. तो ये मल्टीपल ऑफ ये टी सेकंड से रिप्रेजेंट हो, टी सेकंड से रिपीट हो रहा है. मतलब इसका पीरियड क्या हुआ, 1 सेकंड. 1 सेकंड के बाद वो रिपीट हो रहा है. 1 सेकंड के बाद अगर वो रिपीट होगा तो 2 सेकंड के बाद भी होगा, 3 सेकंड के बाद भी होगा, 4 सेकंड के बाद भी होगा एंड सो ऑन. मतलब क्या, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट एनी पीरियोडिक सिग्नल इट मस्ट सैटिस्फाई दिस कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? एनी सिग्नल, ओके, एस ऑफ टी ले लो, एक्स ऑफ टी ले लो, कोई भी सिग्नल. ओके, इफ आई रिप्रेजेंट दैट एज एन एक्स ऑफ टी, x of t must be periodic. अगर x of t periodic है मतलब वो equal है किसके साथ? If I simply take the signal after t seconds and not only t, जैसे मैंने कहा कि ये t के साथ periodic है तो वो 2t के साथ भी periodic होगा, 3t के साथ भी periodic होगा. अगर कोई भी सिग्नल 1 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है तो वो 2 के बाद भी रिपीट करेगा, 3 के बाद भी रिपीट करेगा एंड सो ऑन. तो इसलिए मैं इन जनरल बोलूंगा कि इट इज रिपीटिंग आफ्टर every integer multiple of the period.
सो मान लो कि ये कैपिटल टी जो है ये पिछले एग्जांपल में 1 सेकंड था, तो ये के क्या है, के इज एन इंटीजर, सो इट कैन बी रिपीटिंग आफ्टर 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स एंड सो ऑन। सो इसी का मतलब है कि for any periodic signal it must satisfy this condition, x of t must be equals to x of t plus kt। अब ये k जो है इन जनरल इट्स एन इंटीजर, ओके। इसका मतलब यही है कि ये सिग्नल जो है एक वक्त के बाद रिपीट होना चाहिए, और वो वक्त जिसके बाद वो रिपीट हो रहा है इट इज कॉल्ड एज अ पीरियड, ओके। एंड दिस पीरियड इज डिफाइंड एज, मैं बता देता हूं यहाँ पे, दिस पीरियड इज नथिंग बट दिस पीरियड व्हेन वी से इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल पीरियड, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके बाद वो रिपीट हो रहा है। अब फंडामेंटल ये वर्ड क्यों लगाया मैंने, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट पीरियड, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी नॉट आफ्टर विच इट इज गोइंग टू रिपीट। मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड मतलब क्या, इफ आई वांट टू फाइंड whether a signal is periodic or not, अगर मुझे कोई भी सिग्नल दे दिया और मुझे जानना है कि ये सिग्नल जो है ये पीरियोडिक है या नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बस ये देखना पड़ेगा कि वो सिग्नल रिपीट हो रहा है या नहीं। मतलब ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी पड़ेगी और हमको देखना पड़ेगा कि वो किस समय के बाद वो रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट गिवन बाय दिस कैपिटल टी और टी नॉट टू बी स्पेसिफिक, दिस कॉल्ड एज अ फंडामेंटल पीरियड, ओके। और ये जो है दिस नथिंग बट दिस पीरियड इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, nothing but the inverse of the frequency. So frequency तो हमें पता ही है, what is the frequency, we have seen the frequency, what is this f, ये f ना, since f is nothing but the, इसका inverse अगर आप लोगे, this f का अगर inverse लोगे, so 1 upon f is nothing but the t, time and frequency are inverse of each other, right? So this is called as a concept of पीरियड, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड। एक समय के बाद वो रिपीट हो रहा है। अब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसके बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास है तो लिखो एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं। लेट्स से x ऑफ t इक्वल्स टू लेट्स से साइन ऑफ 2t, लेट दिस बी द सिग्नल, ओके। सिंपल सा सिग्नल ले लिया हमने। अब क्या ये पीरियोडिक है, आप बोलोगे कि नहीं ये तो साइनसॉइड है तो ये पीरियोडिक ही होगा। हाँ ठीक है, इफ इट इज पीरियोडिक इसका मुझे पीरियड बताओ क्या है, कौन बताएगा। इसका पीरियड फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमेशा, पहला प्रॉब्लम है मैं बता देता हूं, पहले तो हमेशा हमको पीरियड जो है हमको पता है कि t इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और दैट इज नथिंग बट द कंपोनेंट। हमेशा क्या करो, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये t का जो कोएफिशिएंट, t इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो ओमेगा रहेगा, ये हमने देखा है। देखो यहाँ पे इफ आई लुक एट, देखो यहाँ पे ये देखो ये t है ना, ये t का कोई भी कोएफिशिएंट क्या होगा 2 पाई f, सो उससे इक्वेट कर लो, ओके। यू जस्ट इक्वेट इट, मतलब क्या, ये 2 है, व्हाट इज दिस 2, 2 इज नथिंग बट दिस ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई f, सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई f या फिर ओमेगा which is nothing but 2. If this is 2, okay, if this is 2, then what is the f, f is nothing but 1 upon pi, और मुझे पता है what is this 1 upon pi is nothing but f is nothing but 1 upon t, तो इसका पीरियड क्या हुआ, t is equals to pi, this is periodic with period pi, मतलब वो pi के बाद रिपीट होगा, this is called as the period of the sinusoid। ये हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इसका कोएफिशिएंट रहेगा t का, ओके, यू जस्ट प्लेस दिस कोएफिशिएंट बिलो 2 पाई, यू विल गेट द आंसर, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। सो इफ आई नीड टू फाइंड अ पीरियड इट इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये मैं जनरल इक्वेशन में बता रहा हूं, is nothing but 2 pi by omega. It is very simple. अगर आप देखोगे यहाँ पे it is nothing but 2 pi by omega. See here. ये देखो ओमेगा क्या है 2 pi f, ओमेगा क्या है 2 pi f, मतलब t क्या है, f क्या है ओमेगा by 2 pi, मतलब t क्या हुआ, t is nothing but 2 pi by omega. Okay, very simple. 2 pi by omega, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे f इधर चले जाएगा
और ओमेगा इधर चले जाएगा, सो इट इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा। सो ये हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी सिग्नल का अगर आपको पीरियड आइडेंटिफाई करना है, जस्ट टेक द कोएफिशिएंट ऑफ टी, ओके, एंड प्लेस इट बिलो 2 पाई, यू विल गेट द पीरियड। अब इस केस में जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, टी इज नथिंग बट 2 पाई बाय व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट 2 हियर बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ टी इज 2, मतलब ये क्या हुआ, पीरियड इज पाई, विच इज करेक्ट। दिस इज द आंसर फॉर दिस सिग्नल। अभी मैं आपको, देखो आप भी मेरे साथ सॉल्व करो ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो क्योंकि हम और एग्जांपल्स पे आने वाले हैं। यू ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल, ओके। मैं अभी आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं एग्जांपल, आप फटाफट सॉल्व करो। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास पेन रखो क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। देखो यहाँ पे एक और सिग्नल ले रहा हूं मैं, लेट्स से x ऑफ t इक्वल्स टू लेट्स से cos 3t, let's say 3 pi t प्लस पाई बाय 4। ये सिग्नल अगर मैंने ले लिया, अगर मुझे पता करना है कि इसका पीरियड क्या है, इज दैट अ पीरियोडिक सिग्नल, इफ इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल फाइंड आउट द पीरियड। अगर वो रिपीट हो रहा है तो किस समय के बाद रिपीट हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो हमको क्या करना है, ये देखो ट्रिक जो है वो सेम ही है। हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर, लाइक यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर, हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर, लेट मी सी। Okay, you're free to unmute your microphone and let me see who is going to answer that. So the trick remains the same, okay। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करो। So ये जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, t का कोएफिशिएंट देखना है हमेशा, है ना। t का कोएफिशिएंट क्या है, ये हटा दो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। t का कोएफिशिएंट क्या है, 3 पाई है, तो ये क्या हुआ, ओमेगा हुआ। ओमेगा इज नथिंग बट 3 पाई, मतलब ये पीरियड क्या हुआ, व्हाट इज द पीरियड, इज 2 पाई बाय ओमेगा। व्हाट इज दैट 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा इज 2 पाई बाय 3 पाई, क्योंकि ओमेगा इज 3 पाई, राइट। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2 बाय 3, मतलब इसका पीरियड क्या हुआ, 2 by 3, whatever it may be, okay। So it is going to be 0.66, whatever it may be, that is going to be the period, okay। So this is nothing but the period of this signal. This is, what is the period of this signal, t is equal to 2 by 3, this is the period of this signal, okay। तो इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर और कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आ जाए। अभी हम लेते हैं कुछ सवाल, ओके। ये सवाल हम लेते हैं, देखो और एक मैं सॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जांपल। मान लो कि मैंने एक सिग्नल लिया, लेट्स से x ऑफ t इक्वल्स टू 1 और या फिर 2 या फिर एनी कांस्टेंट वैल्यू। अगर मैंने ये सिग्नल ले लिया, ओके, ये सिग्नल पीरियोडिक है क्या, ये अगर हमको पता करना है तो पहले तो ये सिग्नल को देखो कि ये है क्या। x ऑफ t इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या, ये सिग्नल इज कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट ऑल द वाइल। मतलब क्या, ये सिग्नल कुछ ऐसा है ना, देखो यहाँ पे, दिस सिग्नल इज समथिंग लाइक दिस। इसको अगर मैं प्लॉट करूं, दिस सिग्नल इज समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे, this is a constant signal that way I'm having, okay। Let me represent with some different color। देखो यहाँ पे, this is the constant signal that I am having, okay। ये जो है मेरा constant signal है। क्यों constant है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू तो है 3 बताई हुई है। So this signal is a constant signal। What is this, x of t? X of t is having value as 3 for all the time t। Now first of all let me know whether this is periodic signal or not। ये एक समय के बाद रिपीट हो रहा है क्या, हाँ रिपीट तो हो रहा है, बट व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस सिग्नल, वेल ये इसका, अब ये देखो इतना इतना ये कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं, हर जगह पे पीरियोडिक है, मतलब इस पे भी पीरियोडिक है, इस पे भी पीरियोडिक है, इस पे भी पीरियोडिक है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, पर हम वी कांट फाइंड द वैल्यू, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ द पीरियड आफ्टर विच इट इज रिपीटिंग। अगर मान लो कि मैंने बोला कि इस समय के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप तो बोलोगे नहीं इस समय के बाद भी रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं डीसी सिग्नल, ओके। कांस्टेंट सिग्नल इज नथिंग बट अ डीसी सिग्नल, okay। DC signal का period is undefined, we can't find the period of a DC signal, okay। So period we can't, this is a DC signal, DC signal is nothing but a constant signal। So for a DC signal, so let me, yeah, for a DC signal, for
For DC signal, period is undefined. Period is undefined. ये याद में रखना है आपको, ठीक है? For a DC signal, period is undefined. Okay. So we have seen multiple cases. Okay, हमने काफी सारी cases देखी यहाँ पे कि कोई सिग्नल अगर कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, कोई सिग्नल अगर पीरियोडिक रहा तो उसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करना, एंड सो ऑन. तो अब तक के हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइनसॉइड्स वाले सिग्नल देखे. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गिव अ कपल ऑफ मिनट्स टू फॉर योर क्वेश्चंस एंड देन आई विल रिज्यूम. ओके, तो यहाँ तक के समझ में आ रहा है गाइस? तो आप मुझे बता सकते हो if you are not getting, if it is like very fast, very slow, if you are not getting the things, you can let me know. You can just unmute your microphones and you can ask me questions. Okay, I'm just giving 1 or 2 minutes for that. So if you have any questions, don't be shy, don't feel like your questions are very no question is stupid. First of all, no question is stupid. If you find that you are having doubts, you are free to ask them. Okay. Any questions so far? Have you understood this? Is this clear, guys? Are you getting these things? Yes, sir. All right. So any questions so far? If you have any questions, you can just ask. No problem. No questions? That means it's purely understood everything you know about the periodicity of a sinusoid. And let me check that. Okay, I'm going to give you a few questions so that you can solve it. And let me first make a request that you have to take your pen and notebook and solve it with me. Unless and otherwise you do that, you are not going to excel, okay, in the exam. So first you need to take a pen and paper and solve it with me. Then only you're going to understand that. Okay, so let's move ahead, guys. So with this signals and systems, so we have seen so far the periodic signal, single periodic signal. Okay, now what we are going to look at is the multiple periodic signals. Okay, let's look at multiple periodic signals. Means what? Let's look at this signal. So let me just take it here. Yeah, let's take one more example. See, we are going to learn with examples, otherwise it will be difficult. So what we are going to do is, let's take an example. Let's say x of t equals to sine square of t. Let this be the signal that is given to you, okay? Or cos square, whatever it may be, okay? So this is a signal that has been given to you. Now, if I ask you to find the period of this signal, what are you going to do? See, of course, we know that how to calculate the period for a sinusoid, but here it is a sinusoid ka square. Okay, so first always remember that you need to simplify this signal. So you can always simplify that 1 minus cos 2t by 2, so whatever it may be. So sine square theta is what? 1 minus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta. It depends on what is that. So sine square theta or cos square theta. It can be sine square theta, it can be cos square theta, it can be anything. Okay, when there is a square, you should always simplify that in this form. Okay, you should always simplify in this form. What is the form? That means you should not, just a minute, guys. So yes. So whenever I'm saying that it is a square one, you first simplify that in a single degree form. Okay. So suppose it is sine square, you just first simplify that in a single cos term. There should not be any kind of degrees there. Otherwise, you may not be able to find the period. So इसको हमने simplify कर लिया है. Then we can simplify this. So what is this? This is equals to, इसका हम period निकाल सकते हैं. It is half minus half cos 2t. नो हमको पता है कि ये अभी प्रॉब्लम ये आ गई है, हमारे पास दो सिग्नल है, यहाँ पे हाफ भी है और यहाँ पे हाफ cos 2t भी है. हाउ टू फाइंड द पीरियड ऑफ सच सिग्नल? So always remember that whenever there is a DC component, as I said, for DC component the period is undefined. It is simply a kind of a DC shift that is happening. ये सिग्नल को हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया है थोड़ा सा.
जो मैं सीटी बजा रहा था, दैट इज नथिंग बट अ साइनोसॉइड, उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया हाफ से. ओके, वी हैव शिफ्टेड दैट विथ हाफ. So you don't have to worry about this. Whenever there is a DC component there, you don't have to worry about that component. And this is very important as far as gate 2019 में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, डीसी सिग्नल के बेसिस पे आपको बताऊंगा, अभी हम क्वेश्चंस भी लेंगे. Okay, so this is nothing but the DC signal. So simply ignore that and just concentrate on the other part. So what is the remaining part? It is cos 2t. So what you can do is simply take the coefficient of that. So what is the coefficient of t? Coefficient of t is nothing but omega, and we know that t is nothing but 2 pi by omega, and that 2 pi by omega is nothing but pi, because this omega is 2 here. So what is this? Iska bhi jo period hai, that is nothing but pi. So that's the answer. Okay, so this is the answer for this question. Now I'm going to take a few more examples. In all the class we are going to take examples, a lot of examples. Let's take one more example. Let's take one more example. Let's say, for example, the signal is something like this. Let's say x of t is equals to, let's say, cos 2t plus sine 3t. Now there's a problem. Now there's not one sinusoid, there are two such sinusoids that are present. Okay, दो sinusoid दे रखे हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? हमेशा पहले देखना है कि इंडिविजुअली उसको टारगेट करो, है ना, वो करो जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया हुआ है, डिवाइड एंड रूल. ओके, ऑलवेज व्हाट यू डू इज, if you have multiple signals with you, just concentrate on each part of those signals. So what is the first part? It is cos 2t. For cos 2t, what is the period? So let it be t1. So this is periodic with period what? It is 2 pi by omega. So what is 2 pi by omega? It is nothing but pi. Iska kya hai period? It is, let's say it be 2 t2. Okay, what is that? 2 pi by omega. So what is that? 2 by 3, right? It's 2 pi by omega. What is that? It is 2 pi by 3, right? It is 2 pi by 3. What is this? Pi. What is there? 2 pi by 3. Now there is a problem. First says that it is periodic with period pi. The other says that it is periodic with period what? 2 pi. Now there is a problem here. Okay. Now whenever you face such signals, okay, हमको ये इंडिविजुअल सिग्नल का पीरियड कैलकुलेट नहीं करना है, हमको ये ओवरऑल सिग्नल का पीरियड कैलकुलेट करना है. वी नीड टू फाइंड द पीरियड ऑफ दिस होल सिग्नल एक्स ऑफ टी, एंड वी नो द इंडिविजुअल पीरियड्स. t1 मतलब ये सिग्नल का पीरियड जो है, दिस cos 2t is pi, sin 3t is 2 pi by 3. Now if I want to calculate the period of the whole signal, you can simply do the kind of the ratio test. Okay, what is the ratio test? You just take the ratio of both of them. इन दोनों का रेशियो ले लो. मतलब क्या? Take t1 upon t2. Take t1 upon t2. What is that? Pi upon 2 pi by 3. So what is that? It is going to be 3 by 2. और चेक करो कि ये रेशियो है, ये जो रेशियो हमने निकाला हुआ है, is that a rational number or not? What do you mean by rational number? मतलब ये दो इंटीजर का रेशियो होना चाहिए. Okay, it must be a ratio of two integers. अब ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे कि दिस इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. 3 is an integer, 2 is an integer, and therefore the ratio of the periods, individual periods, is a rational number. So let me make a big mark here. So this is called as a rational number. Rational number मतलब दो इंटीजर का रेशियो होना चाहिए. बस ये दो इंटीजर का रेशियो है क्या? हाँ है. That means this signal is periodic. पहले तो पीरियोडिसिटी चेक करो, उसके बाद ही पीरियड निकाल पाओगे. ओके, पहले हमने चेक किया कि ये पहला जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है, वो पाई के बाद रिपीट हो रहा है. दूसरा हमने सिग्नल निकाला t2, ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई. बट हमको इंडिविजुअल पीरियड्स नहीं चाहिए, हमको एज अ होल ये पूरा का पूरा सिग्नल ये पीरियोडिक है या नहीं ये पता करना है. तो हम क्या करेंगे कि ये t1 और t2 इंडिविजुअल पीरियड्स का रेशियो ले लेंगे. वो रेशियो हम देखेंगे कि ये रैशनल है क्या. अगर वो रैशनल है तो ही हम बोलेंगे ये सिग्नल पीरियोडिक है. अगर वो पीरियोडिक है तो वो रिपीट होना चाहिए एक समय के बाद. तो किस समय के बाद वो रिपीट होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसका जो है ना, आप जो है मतलब ये t1 by t2 आपने रेशियो निकाल लिया, t1 upon t2, that is nothing but 3 by 2. तो this signal is going to be periodic with period 2 times t1 or 3 times t2, whatever it may be. मतलब क्या? t1 हमको पता है पाई. ओके, t1 हमको पता है पाई. सो मतलब क्या? ये 2 times ये मतलब क्या? 2 times t1 क्या है?
इट इज 2 पाई। या फिर 3 टाइम्स t2 क्या है, इट इज अगेन 2 पाई। ओके, दिस इज द पीरियड, this is the period of the entire signal. So t is nothing but 2t1 or 3t2। और ये करते समय हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि ये जो है ना, दे शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कॉमन फैक्टर इन दीज टू नंबर्स। ओके, ऑलवेज, मतलब अगर मैं इसको 6/4 लिखूं तो यू डोंट हैव टू टेक 6 टाइम्स t2 and 4 times t1। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर्स। Okay, so the thumb rule is, I'll summarize what I've said. Whenever there are multiple sinusoids that are present as a kind of a linear combination, बहुत सारे साइनोसाइड्स है जो एडिशन में आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं, कोई भी फॉर्मेट में अगर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉट प्रोडक्ट। ओके, अगर वो आ रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमें सिर्फ पहले इंडिविजुअल सिग्नल्स का पीरियड कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल पीरियड्स का सिग्नल कैलकुलेट करने के बाद हमको ये देखना है कि वो रेशियो टेस्ट पास हो रहा है क्या। रेशियो टेस्ट मतलब the periods must be the ratio of the periods must be a rational number। rational number मतलब वो ratio of 2 integers होना चाहिए। अगर वो है तो फिर वो सिग्नल पीरियोडिक है, अगर वो पीरियोडिक है तो उसका पीरियड जो है that is nothing but a 2 pi। that is nothing but the ratio cross multiplication of the ratios। okay, और ये करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि the common factors are cut down। okay, you should not have any kind of common factors there। okay, so always remember this is the kind of a small trick based on which the gate का क्वेश्चंस भी जो है ना वो आ रखे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि जब भी आपको मल्टीपल साइनोसॉइड्स मिले उसको पहले इंडिविजुअली चेक करो। इंडिविजुअल अगर पीरियोडिक है तो आप हमेशा रेशियो ले लो। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं ये सिग्नल, देखो एग्जांपल, एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक x of t equals to let's say cos √3t just a minute, just find this, yeah, cos 3t √3t plus let's say sin pi t। दिस बी द सिग्नल। ओके, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। ओके, और इंडिविजुअली हमको निकालना है पीरियड, इसका इंडिविजुअली पीरियड निकाल लो। व्हाट इज दिस, अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगा, t इज नथिंग बट t1 इज नथिंग बट 2 pi by √3। दिस इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट सिग्नल। दूसरे का क्या है, t2 इज 2 pi by 3 pi, दैट इज नथिंग बट 2/3। हमको दोनों के इंडिविजुअल पीरियड्स हमको मिल गए, पर हमको दोनों के इंडिविजुअल पीरियड्स नहीं चाहिए, हमको सिग्नल के ओवरऑल सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है या नहीं वो हमको देखना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, t1/t2 निकालना है। इट इज व्हाट इज t1/t2, t1/t2 इज नथिंग बट 2 pi by √3 and 2/3। नाउ ऑफ कोर्स इज दिस अ काइंड ऑफ अ क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पाई वहां पे आ रहा है, तो ये रैशनल नहीं होगा। दिस इज एन इरैशनल नंबर, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट, या फिर मैं बोलूंगा कि इट्स इरैशनल। ओके, इरैशनल, इट इज नॉट अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर। इसीलिए ये सिग्नल पीरियोडिक हुआ क्या, ये दिस सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक। आपको ये लग रहा होगा कि पीरियोडिक है क्योंकि ये कॉस सिग्नल है और ये साइन सिग्नल है तो ये पीरियोडिक होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पीरियोडिक ही रहे, वो तब रहेगा क्योंकि ये दोनों का जो है वो एडिशन है ना, दो सिग्नल्स का एडिशन है, और एक पीरियोडिक है, इंडिविजुअली वो पीरियोडिक है नो डाउट, बट एक साथ अगर आप लोगे, ओके, इफ आई टेक द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम दे आर नॉट पीरियोडिक। सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट पीरियोडिक, दिस सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक। ओके, अभी हम आते हैं कि गेट के सवालों के ऊपर। ओके, विल टेक सम गेट क्वेश्चंस। ओके, आई हैव जस्ट रिटन सम गेट क्वेश्चंस विद मी सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि यू नो ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स काम का है, otherwise you'll just feel that okay it will not be useful, so but this is extremely useful
So let me just come to the gate questions. कुछ गेट के सवाल हम लेंगे. हाँ, ये मेरा फेवरेट सवाल है, मतलब काफी सिंपल है और गेट में भी पूछा गया है. सो लेट मी टेक दिस गेट 2009 क्वेश्चन. ओके, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन 2019 में ईसी में पूछा गया था कि ये इतना बड़ा सिग्नल दे दिया एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड. ओके, अब हमको पता है कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है. फंडामेंटल पीरियड इज दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी नॉट आफ्टर विच दिस सिग्नल रिपीट्स. अब हमको पता है कि एक सिग्नल नहीं दे रखे हैं, हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स दे रखे हैं. कौन कौन से सिग्नल्स दे रखे हैं? ये 1 दिया हुआ है ना, बड़ा हो गया ये. सो 1 दिया है ना, इसको पार्ट देखो आप. 1 दिए रखा है, उसके बाद ये 2 इंटू कॉस पाई दिए रखा है, 3 दिया रखा है. ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं हमारे पास, है ना. तो हमेशा याद रखना है कि डिवाइड एंड रूल खेलो. ऑलवेज व्हेनेवर देयर आर मल्टीपल सिग्नल्स दैट आर प्रेजेंट, ऑलवेज गो फॉर डिवाइड एंड रूल. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक इंडिविजुअल सिग्नल ले लो. ये पहला क्या है? ये डीसी सिग्नल है, राइट. दिस इज अ डीसी सिग्नल, मतलब ये कांस्टेंट सिग्नल है. कांस्टेंट सिग्नल के लिए कुछ पीरियड रहता है क्या? इसके लिए पीरियड जो है वो अनडिफाइंड है. सो दिस इज अनडिफाइंड. इसका पीरियड जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब ये भूल जाओ. फर्स्ट पार्ट यू जस्ट फॉरगेट इट. ओके, व्हाट इज लेफ्ट इज इट्स 2 cos pi t. ये है. अब हमको पता है इसका पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है. हमको पता है हमेशा क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ t देखो. कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है? पाई है. जस्ट 2 पाई बाय दैट कोएफिशिएंट करो, आपको पीरियड मिल जाएगा. मतलब ये अगर t इक्वल्स टू 2 pi by whatever is that omega. 2 pi by what is this omega? Is nothing but pi. So इसका पीरियड क्या हुआ? It is 2. So इसको मैं let it be t1 बोलूंगा क्योंकि ये पहला सिग्नल है हमारे पास. और दूसरा क्या है? दूसरा और ले लेते हैं. It is 2 pi by 3. मतलब इसका पीरियड क्या हुआ? वैसे ही कैलकुलेट करना है. Let it be t2. It is nothing but 2 pi by 3. It is nothing but 3. वैसे ही फोर्थ सिग्नल का हम लेते हैं. ओके, इसका लेते हैं. इसका ये देखो, इसको ध्यान में नहीं रखना है. व्हाट इज द फेज पार्ट दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द फ्रीक्वेंसी. तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? पाई बाय 2. तो इसका हम कैलकुलेट करते हैं पाई बाय 2 के लिए. t3 क्या देख रखा है? 2 पाई बाय पाई बाय 2. 2 पाई बाय 2 मतलब क्या? 4. अब हमको इंडिविजुअल पीरियड्स हमको मिल गए. मतलब ये t1 जो है ये 2 है, t2 जो है वो 3 है, t3 जो है वो है 4. अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि पहले तो ये चेक करो. हमको पता है कि इंडिविजुअल अगर साइनोसॉइड दे रखे हैं तो हमको क्या करना है? पहले तो आप उनका रेशियो ले लो, रेशियोज ले लो और पता करो कि ये सिग्नल्स जो है वो इनके पीरियड जो है वो रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स है क्या? हाँ है. दीज आर ऑल 3 इंटीजर्स, राइट. तीनों के तीनों जो है वो इंटीजर्स है. तो हमेशा क्या करो कि आपको ये ध्यान में रखना है कि whenever there is a period, if you want to calculate a single period, t is nothing but the LCM. Okay, always take the LCM of individual periods. Okay, what is the LCM of 2, 3 and 4? That's it is the period. इसका पीरियड क्या है आप बताओ फिर. 4. इसका LCM क्या है? Least common multiple is 12. So this is nothing but the period of this whole signal. Okay, so आपको ध्यान में होगा कि इसके पहले मैंने क्या कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ओके, टेक इंडिविजुअल, बट यहाँ पे 3 सिग्नल्स है और ऐसे अगर 10 सिग्नल दे रह गए तो आप क्या करोगे? आप ऐसे रेशियो थोड़ी करते बैठोगे. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज द थंब रूल इज टू रिमेंबर दैट if we are having multiple signals, just take the LCM of the individual periods. Okay, that's how you can calculate the the period of the whole signal. यहाँ तक कि शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आपके पास मल्टीपल सिग्नल दिए रहे हैं आप इंडिविजुअल पीरियड्स निकालो और उनका अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो आपको जो है इसका फंडामेंटल पीरियड मिल जाएगा. ओके, सो दिस वाज आस्क्ड फॉर 1 मार्क अगेन इन गेट 2019. पिछले साल ये पूछा गया था. ओके, आप चेक कर सकते हैं. सो और एक गेट का सवाल लेते हैं, आपको पता चल जाएगा क्योंकि गेट में इसी टाइप के कुछ सवाल आ रखे हैं. तो ये हुआ गेट 2013 में आया था. अब इन्होंने देखो कितनी थोड़ी सी ट्रिक उन्होंने दे रखी है. दे आर इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर फंडामेंटल पीरियड, दे हैव आस्क्ड फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना.
तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है इट इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ फंडामेंटल पीरियड बिकॉज द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और उन्होंने ये भी बोल रहा है कि मेरे को रेडियन पर सेकंड में क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड। तो हमने ये पहले ही पता है हमको, ये रेडियन पर सेकंड जब भी आता है ओके दैट इज नथिंग बट द ओमेगा। यहाँ पे देखो रेडियन पर सेकंड मतलब क्या, मतलब ओमेगा। देखो यहाँ पे ये साइनोसॉइड्स बताते वक्त मैंने ये कहा था कि दिस ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस इज नथिंग बट रेडियन पर सेकंड, राइट। दिस इज ओके सेकंड बोल गया यहाँ पे, रेडियन पर सेकंड। व्हाई रेडियन पर सेकंड, बिकॉज दिस पाई इज इन रेडियंस एंड फ्रीक्वेंसी इज पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड है ना, मतलब क्या पर सेकंड, मतलब ये इसका यूनिट क्या हुआ रेडियन पर सेकंड। ओमेगा का यूनिट क्या हुआ रेडियन पर सेकंड। सो हमको क्या करना है कि हमको ये पता करना है कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। इसके पहले के सवालों में हमने सब फंडामेंटल पीरियड देखे थे, अभी इन्होंने क्या देख रखा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो लॉजिक रिमेन्स द सेम, ओके लॉजिक रिमेन्स द सेम। तो हमको क्या करना है कि पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी है इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। इसकी इंडिविजुअल ओमेगा क्या है, देखो यहाँ पे if I take the first signal, इसका ओमेगा क्या है, it is 100, right? So let this be omega 1. This omega 1 is nothing but 100. Omega 2 क्या है, omega 2 is 300. So let it be omega 2. Omega 2 it is what, 300. omega 3 क्या है, तीसरे सिग्नल का क्या है, omega 3 क्या है 500। अब हमको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये पीरियड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके। ये फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसका भी आप एलसीएम नहीं लोगे, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये इनवर्स ऑफ टाइम है, राइट। सो यू हैव टू टेक द HCF of individual, HCF of all these frequencies. That means highest common factor of all these frequencies. So that means if I need to calculate, हमको पता है कि this signal is periodic with frequency, the fundamental frequency is omega 1. The other signal is periodic with fundamental frequency of omega 2. The third signal is periodic with frequency as omega 3. Then what is the frequency? What is the fundamental frequency of this whole signal? होल सिग्नल का अगर हमको निकालना है तो ये फ्रीक्वेंसी होने की वजह से वी आर नॉट गोइंग टू टेक एलसीएम, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टेक HCF of it, that is nothing but highest common multiple, okay, highest common factor, that is nothing but this. Yes, so omega, the overall period, the overall fundamental period is nothing but HCF of omega 1, omega 2 and omega 3. So what is that? What is the HCF of 100, 300 and 500? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों में, हाईएस्ट और वो भी कॉमन तीनों में कौन सा है, 100. So this is nothing but the answer. This is a fundamental frequency in radian per second for this signal is 100. Okay, so these were a few questions that have been asked in the GATE, and similar pattern have also been asked in other competitive exams also. तो ये जो आपकी प्रिपरेशन हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए नहीं है, काफी सारी जैसे IAS के लिए भी हो या फिर काफी सारी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है मैम, हम फटाफट समराइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस ऑफ योर्स। सो लेट मी फर्स्ट क्विकली समराइज व्हाट वी हैव सीन टुडे। ओके, what we have seen today is nothing but, first of all we have seen what is signal. सिग्नल को हमने देखा, सिग्नल होता क्या है। हमने ये बोला कि सिग्नल is nothing but so let me we have seen that the signal is nothing but a kind of a function. It's a function of one or more independent variable. It's a function of an independent variable. What do you mean by independent variable? It could be a time, no problem. Okay, it can be time, it can be space, it can be anything. Okay, we have seen what is signal. उसके बाद हमने ये देखा कि we are going to learn a specific class of signals that are called as sinusoids. The sinusoids are nothing but sine or cosine waves. Okay, these are nothing but sine और cosine. उसका हमने standard form भी देखा. What is the standard form of sinusoid or cosinusoid? ये पता नहीं होता है लोगों को. The standard form is nothing but this A. There are three parameters based on which we can define a sine wave. It's an amplitude, there is a frequency, and there is a phase. Okay, time is an independent parameter here. So a sinusoid can be defined as A sine 2 pi ft plus theta, where this
the amplitude is A, the frequency is in hertz or cycles per second, it's F, and theta is nothing but the phase that is there in the radians. और हमने ये देखा कि ये 2 pi f को जो है हम ये ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं. ओमेगा is nothing but the angular frequency that is measured in radian per second. Okay, and there's something called as a fundamental period. The fundamental period is nothing but the time after which this signal is going to repeat, and we have seen that these sinusoids are periodic in nature, and we have defined the periodicity ka definition. What is a signal is periodic if x of t is equals to x of t plus capital T. Okay, and this can be even the integer multiple. That means x of t is equals to x of t plus kt. K is nothing but an integer. Then we have seen a lot of examples starting from the simplest one and then some complicated. We have also seen that for DC signal the period is undefined. We have seen that for DC signal the period is undefined, and later on we have also seen some multiple cases. We have seen that whenever we are having multiple signals, what you need to do is to simply calculate the individual periods, and you need to check whether the ratio of the individual periods, whether it is a rational number or not. If it is a rational number, it is periodic. If it is not, it is not periodic. We have seen that. We have taken some more examples. Okay, some more examples we have seen. We have seen the gate examples as well. We have seen the gate examples. Gate 2019 और 2013 में जो सवाल पूछे गए थे उसके ऊपर भी हमने देखा. So, all right, guys, this was very compact and very kind of a crash course kind of a session. So for today's lecture, we can stop it here, and I'll just take a few questions of yours if you have any. Okay.